راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور پڑی ہے اندھے کو عادت کے شور بے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم کامل ایمان والا نہ ہو جاؤ، یعنی تمہارا جب انتقال ہو، تمہاری جب موت آئے تو تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو۔ حضرات محترم، توجہ کرنے کی بات ہے، اس پر ہم اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو جہاں کہیں بھی ہو پوری دنیا میں جب بھی کوئی قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کو خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے، یعنی خوشی کا ماحول ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نکاح کے وقت خطبہ میں موت والی آیت پڑھی جا رہی ہے؟ گویا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم اور آپ کو پیغام مل رہا ہے کہ اے میرے بندے، چاہے تم غم کی حالت میں ہو، چاہے تم خوشی کی حالت میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع میں رہو، تنہائی میں رہو، سفر میں رہو، حضر میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، یاد رکھنا تمہیں موت آ کر کے رہے گی، تمہیں موت آئے گی، یعنی جہاں کہیں بھی رہو موت کو یاد کرتے رہنا۔ جب تم موت کو ذہن میں رکھو گے تو تمہارا ہر کام جو ہوگا انشاءاللہ موت کی وجہ سے، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے احکام خداوندی کے مطابق ہوگا، اور فرامین رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مطابق ہوگا۔ جب ہمارے ذہن میں موت رہے گی کہ ہاں ہمیں موت آنی ہے، تو ہمارا ہر قدم سنت رسول کے مطابق اٹھے گا، ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ حضرات محترم، اسی ضمن میں ایک واقعہ جو بہت بڑے مفتی براؤ شریف کے رہنے والے ہیں، جن کا نام حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، جو تقریباً 2 سال پہلے ڈیٹ میں حضرت کا وصال ہو گیا تھا، ان سے بارہا یہ واقعہ میں نے سنا ہے پروگرام میں، جلسے میں، کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک قاضی صاحب سے جو تمام شہر کے لوگوں کو فیصلہ کرتے تھے، تمام لوگوں کے معاملات کو ان کے پاس رکھا جاتا تھا، اور بحیثیت فیصل، بحیثیت قاضی تمام لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، توجہ کے ساتھ سننا، آج بھی ہمارے گھروں میں جب کوئی بات ہو جاتی ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی بات ہو جاتی ہے، تو سرپنچ لوگ آتے ہیں، گاؤں کے چند لوگ آتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی نہیں اکثر ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن توجہ کے ساتھ سننا، اب وہ قاضی صاحب تمام لوگوں کے فیصلہ کو کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب کے پاس ایک ہی لڑکی ہے، ایک ہی بیٹی ہے۔ حضرات محترم، ہو سکتا ایسا ہوتا ہے گاؤں بھر میں کہ میٹنگ جب ہوتی ہے، فیصلہ جب ہوتا ہے، تو پیسہ لے کر کے، منہ کو دیکھ کر کے، جاہ و حشمت کو دیکھ کر کے، زمین جائیداد کو دیکھ کر کے، بلڈنگ کو دیکھ کر کے، عمارت کو دیکھ کر کے، شہرت کو دیکھ کر کے، آدمی فیصلہ جو سناہتا ہوتا ہے، ادھر کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے، اس کے حق کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے، یعنی جو کمزور ہوتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، جو پیسہ والا ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ غلط سنا کر کے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی ریت ہے، دنیاوی ماحول ہے، یہ ہم اور آپ کا مزاج ہے۔ لیکن حضرات محترم، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب قاضی صاحب ہیں جو تمام لوگوں کے معاملات کو سن کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک ہی لڑکی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، جو نہایت ہی پارسا ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، اور تمام طرح سے اس کی جو زندگی گزرتی ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طور طریقے کے مطابق گزر رہی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کے پاس یہ خبر کروائی امی کے ذریعے کہ اے میری امی، میرے والد گرامی صاحب کہہ دے جا کر کے کہ میری شادی ایسے لڑکے سے کروانا، میری شادی ایسے لڑکے سے کی جائے جو لڑکا کبھی سی غیر لڑکی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اللہ اکبر، جو لڑکا نہایت ہی پارسا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا
हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाया हो, इस्लामी लिबास में मलबूस भी रहता हो। अब उस लड़की ने अपने वालिद गिरामी के पास इस तरह से खबर करवाई। हजरात मोहतरम, कौन बाप नहीं चाहता है कि मैं अपनी औलाद की ख्वाहिश की तकमील करूं? कौन बाप नहीं चाहता है कि मैं अपने औलाद की बात को पाए तकमील तक पहुंचाऊं? कोशिश करता है। देने वाली जात तो अल्लाह ताला के लिए है, लेकिन आदमी पूरी करता है, वो वसीला होता है, वो जरिया होता है, उसकी ख्वाहिश को पूरी करता है, उसकी जरूरत को पूरी करता है। हजरात मोहतरम, अब उस बाप ने जब ये सुना है काजी साहब, तो फौरन बेचैनो बेकरार हो गए कि कहाँ ऐसा लड़का मिलेगा। बहरे कैफ औलाद की ख्वाहिश थी, बेटी की बात थी, एक ही लड़की थी जो निहायत ही पारसा, निहायत ही पाबंद थी नमाज की और रोजा की, हर तरह से शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली थी। अब लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, शहर शहर घूम लिया, गली गली घूम लिया, चप्पा चप्पा घूम लिया, रिश्तेदारों में ढूंढ लिया, अकरबा में ढूंढ लिया, इज्जा में ढूंढ लिया, दोस्त अहबाब में पता लगा लिया, कहीं कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा है। हज़रात मोहतरम, कहीं ऐसा लड़का ना मिला। लेकिन जब उसने पता लगाना शुरू किया तो उनका एक दोस्त था जो कुछ दिनों के लिए उसके यहाँ से कहीं गए हुए थे। जब वो आते हैं तो क्या देख रहे हैं, हमारे दोस्त काजी साहब के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार दिख रहे हैं, कुछ परेशानी के आसार झलक रहे हैं। अब वो दोस्त पूछते हैं कि काजी साहब बताइए क्या मामला है, आपके चेहरे पर परेशानी का आसार क्यों जाहिर हो रहे हैं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बताइए किस चीज ने आपको परेशान की है। अब वो काजी साहब कहते हैं क्या मेरे दोस्त, तुम्हें तो मालूम है ना, मेरे पास एक ही लड़की है जो निहायत ही वो पाबंद है, शरीयत है, नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, कुरान की तिलावत भी करती है और हर तरह से सुन्नत रसूल और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करती है। उस लड़की ने मेरे पास खबर करवाई है कि मेरी शादी ऐसे लड़के से करवाई जाए जो लड़का शरीयत का पाबंद हो, अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने वाला हो, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो, कभी किसी गैर लड़की का चेहरा भी ना देखा हो। इस तरह से वो हर तरह से सुन्नतों से वो पूरा सर से पैर तक सुन्नत रसूल में डूबा हुआ हो, ऐसे लड़के से शादी करवाई जाए। अब वो दोस्त भी ढूंढना शुरू कर देता है, पता लगाना शुरू कर देता है, ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते अब जब काजी साहब के पास पहुंचा है और खुशखबरी लेकर पहुंचा है, काजी साहब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम और आप मोहल्ले के लोग जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं, उस मस्जिद का मुअज्जिन जो जिसका नाम मुबारक है, वो मुबारक ऐसा लड़का है जो कुरान की तिलावत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, कभी किसी गैर लड़की का चेहरा नहीं देखा है, शरीयत का पाबंद है। आप घबराए नहीं, मुबारक से अपनी लड़की की शादी कर दीजिए। सुभान अल्लाह। अब शादी के लिए मुबारक को बुलाया जाता है कि चलो मुअज्जिन साहब को बुलाओ। जैसे ही काजी साहब की बात कानों में पहुंचती है, अब मुबारक काजी साहब के घर पे जा रहे हैं, काजी साहब करीब बुलाते हैं, मुबारक आओ, करीब आओ। अब काजी साहब की बात पर मुबारक थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं, लेकिन मसलहत खुदाबंदी थी। हजरात मोहतरम अब करीब बैठाते हैं और सारी बातें कहते हैं, क्या मुबारक तुम्हें तो मालूम है ना मेरे पास एक ही लड़की है, मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लड़की की इस तरह ख्वाहिश है और माशाअल्लाह मेरी लड़की ने जिस चीज की फरमाइश की है, जिस तरह से उसने अपने ख्याल का इजहार किया है, वो तमाम सिफतें से तुम मुत्तसिफ हो, तमाम सिफतें तुम्हारी अंदर पाई जा रही है, लिहाजा मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब मुबारक मुअज्जिन साहब कहते हैं कि हाँ हाँ काजी साहब आपकी बातें तो मैंने सुन ली, जरा हम अपने अब्बू अम्मी से इजाजत तो ले लें। जरा बचल करके बोले फतेहपुर वालों सुभान अल्लाह, एक मरतबा जरा हाथ को उठा करके फिजा में लहरा करके दाएं वाले बाएं वाले आगे वाले पीछे वाले सारे हजरात हाथ को फिजा में लहरा करके बोल रहे सुभान अल्लाह। हजरत अब जो है मुबारक साहब जाते हैं अपने घर पे, अब्बू अम्मी से इजाजत लेते हैं, शादी की तारीख तय हो जाती है। शादी की तारीख तय हो जाने के बाद निकाह खानी भी होती है, वो वक्त शरीद भी आता है कि निकाह खानी हो रही है, अब तो मसनून हो गया। अब लड़की रुखसती करने के बाद, रुखसती होने के बाद अपने ससुराल को जाती है। ससुराल में जाने के बाद हम मुबारक की बीवी हो गई काजी साहब की बेटी, अब वो ससुराल में गई है तो 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन मुबारक अपनी बीवी से कभी मुलाकात तक न किया। अब जैसे ही काजी साहब की बेटी अपने वालिद गिरामी के पास ये खबर पहुंचाती है कि आपने कैसे लड़के से मेरी शादी कर दी है, वो लड़का 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हुआ, आज तक हमसे कभी
हमारी मुलाकात तक न किया, मेरे पास इस तरह से कभी आया भी नहीं। अब काजी साहब जैसे इन बातों को सुनते हैं, उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है और काजी साहब को बुलाते हैं, मुबारक को बुलाओ। अब जब मुबारक आते हैं तो मुबारक से पूछते हैं, क्या है मुबारक मुअज्जिन साहब, क्या मैंने अपनी लड़की की शादी इसलिए की थी? मैंने सुना है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन तुम मेरी बेटी से अब तक मुलाकात न किया। तो फौरन मुबारक मुअज्जिन का सवाल का जवाब सुनिए। अब मुबारक मुअज्जिन साहब कहते हैं कि हाँ काजी साहब, ये सही है कि मैंने आपकी बेटी से अब तक मुलाकात न किया है, लेकिन आइंदा सुने, आइंदा भी 6 महीना आपकी बेटी से मैं मुलाकात नहीं करूंगा। अब काजी साहब सुनने के बाद और परेशान हो जाते हैं, कहते हैं आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। अब मुबारक मुअज्जिन साहब कहते हैं कि आप शहर के काजी हैं, आप शहर के फैसल हैं, आप तमाम लोगों के फैसले को अंजाम देते हैं। हो सकता है कभी पैसा लेकर के, कभी घूस लेकर के, कभी रिश्वत लेकर के गरीब के हक का फैसला अमीर के हक में कर दिए होइएगा और उसी पैसे से बाजार गए होइएगा और वहां से दाल भी लाए होंगे, चावल भी लाए होंगे, आटा भी लाए होंगे और उसी दाने को खा करके आपकी बेटी परवरिश पाई होगी, लिहाजा उसका खून गंदा हो गया होगा। मैं अपने घर पे ले गया हूँ, आपकी बेटी हमारे घर में गई है, अब मैं उसको हलाल रिस्क खिलाता हूँ, हलाल रिस्क खिला करके उसके खून को साफ कर रहा हूँ। जब उसका खून साफ हो जाएगा उसके बाद आपकी बेटी से मुलाकात करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अब वही होता है, फिर उसके बाद वो वक्त आता है क्या मुबारक मुअज्जिन साहब अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद किताबों में आया है, अब जब उस लड़की के काजी साहब की बेटी से जो बच्चा पैदा लेता है, वो अपने वक्त का मुहद्दिस, जिसे पूरा जमाना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से जानता है, पूरा जमाना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से जानता है। हजरत मोहतरम अपने वक्त के मुहद्दिस पैदा लेता है। हाँ हाँ भव्यपुर वालों, मैं तवज्जो के साथ आपको बताना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनना कि माँ बाप जब नेक होते हैं तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ बाप जब नेक होते हैं तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। माँ बाप जब नेक होते हैं तो बेटा पूरी दुनिया के नबी, पूरी दुनिया की उम्मत के नबी, हम और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होते हैं। हजरात मोहतरम, हमारी तकरीर का निचोड़ ये है कि हम और आप हलाल खाएं और हलाल पिएं और उसके बाद अपने बच्चों को भी नेक बनाएं, खुद भी नेक बने। हम अच्छे रहेंगे, हमारे बच्चे भी नेक होंगे, हमारी औलाद भी नेक होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को मज़कूरा बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए हम और आप बुलंद आवाज़ से तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा तौफीक